Good afternoon, dear students. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Sorry for today's delay. Today we'll start with a second practical next session. Our second practical is very much huge in the size. Where in last two practical we have just seen what are the different commands coming under the DDL statements. Apart from that commands, there are different constraints that we can apply on table while we are creating a table. Now, what is a constraint and why we have to add that constraint on the table? So constraints are nothing but these are the set of rules defined on table to ensure the data integrity. Example लो, जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो और स्टूडेंट के टेबल में हम लोगों ने कॉलम्स बनाए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, लाइकवाइज, और आपको लग रहा है कि जो रोल नंबर है ये यूनिक होना चाहिए. यूनिक मतलब क्या कि अगर किसी एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन कर दिया किसी क्लास के लिए, तो वो रोल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए किसी और स्टूडेंट के लिए, मतलब डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं मिलने चाहिए. एवरी स्टूडेंट शुड हैव सम यूनिक रोल नंबर. तो ये हो गया एक कंडीशन जो हमने रोल नंबर के लिए अप्लाई किया. फिर सेकेंड कंस्ट्रेंट ये हो सकता है एग्जाम्पल यानी कंडीशन कि स्टूडेंट का जो नाम है, कोई भी रो में स्टूडेंट का नाम ब्लैंक नहीं होना चाहिए. एवरी स्टूडेंट शुड हैव सम नेम. सो ये हो गया कि नल नहीं होनी चाहिए कोई वैल्यू. फिर थर्ड, आपको लगता है कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसकी एज 18 ईयर से अब होनी चाहिए. सो अगर वो स्टूडेंट उसकी एज डाल रहा है 11, 12, 13, तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. मतलब कोई वैल्यू है वो आपको क्या करना है, चेक करना है. या फिर एग्जाम्पल लो, बैंक में अगर कोई अकाउंट ओपन कर रहा है तो उन बैंक को ऐसा चाहिए कि मिनिमम 1000 रुपीज बैलेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए. So these are some rules on a particular column or on a table so that the data is in a very proper format. So this is called as the rules, and rules को words दिया है DBMS में constraint. So we are going to see total 6 constraint today. Primary key, not null, default, unique, check, foreign key, which is also called as the reference key. So we are going to see this 6 constraint. Okay, but how to add this constraint? So I will just show you one diagram which I have prepared. Here, if you see, like, this is a particular constraint. So what different things you do with the constraint? Very first is you can add a constraint at time of table creation. यानी जब आप कोई टेबल बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो टेबल क्रिएट करते वक्त ही आप उसके ऊपर कंस्ट्रेंट या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो. केस 1, केस 2, आपने ऑलरेडी टेबल बना लिया है. ओके, और टेबल बनाते वक्त आप भूल गए कोई कंस्ट्रेंट डालना, एंड आफ्टर टेबल क्रिएशन नाउ यू थिंक आई वांट टू ऐड सम कंस्ट्रेंट. So same thing, you can add a constraint after table creation also. So you can add a constraint at 2 times. One, at the time of table creation. Second, after creating a table. And third is, आपने कोई कंस्ट्रेंट डाला है, अब आपको लग रहा है कि नहीं वो कंस्ट्रेंट मुझे नहीं चाहिए या वो कंस्ट्रेंट चेंज हो गया है. So you can remove or drop that constraint also. Now whenever you are adding a constraint on the table, that constraint can be added at 2 levels. One is at the column level and second can be at the table level constraint. तो ये हर चीज हम one by one practically करके देखेंगे. So I hope you understand. Constraint are of 6 types, and you can add a constraint at the time of table creation, at column level or at table level. Second, you can add a constraint after table creation also, or you can drop constraint also. Okay, so this is all about the constraint. These are the names of constraint that we are going to see: primary key, not null, default, unique, check, and foreign key. So we will go one by one. So I have just started the MySQL and I'm going with the database. So the name of database I am using is the Bhavna. Then second, now I am just creating a table. So firstly, I will just check what are the different tables available. Okay, in this database, no table is I have created. So I will start with creating one table. For every example, we will create 2 tables. हर
एक कंस्ट्रेंट के लिए हम 2 टेबल बनाएंगे। ओके, एक टेबल जिसमें हमने कंस्ट्रेंट डालना भूल गए हैं, तो उसके बाद टेबल क्रिएट होने के बाद कैसे कंस्ट्रेंट ऐड करना है वो हम देखेंगे। और सेकेंड, जब हम टेबल बना रहे हैं तो बनाते वक्त ही कंस्ट्रेंट को कैसे ऐड करना है। So 2 example for every constraint. So we will start with first constraint, that is a unique constraint. Unique constraint नाम ही unique है ना? Unique मतलब क्या? जिसमें डुप्लीकेशन नहीं आने वाला है। Everything should be unique, different than each other. तो जैसे हमको पता है रोल नंबर ही हमेशा यूनिक रहता है, किसी का रिपीट नहीं हो सकता है। सो लाइकवाइज वी कैन ऐड सच कंस्ट्रेंट। अब हम एक टेबल बना रहे हैं। सपोज आई हैव create table A1. In that I have added roll number, its data type int, size, and a simple second column name. Data type I have given is a varchar, and size and semicolon. See, I have not added any constraint. A simple table with 2 column, roll number and name. Now I am using a describe command on A1. Okay, so now you can see like this is a particular key. जब आप डिस्क्राइब करते हो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर कॉलम, व्हाट इज इट्स डेटा टाइप एंड नल। जब हम नॉट नल कंस्ट्रेंट देखेंगे, अभी की मतलब आपने कौन सा की, 3 टाइप्स की कंस्ट्रेंट में 3 टाइप्स की होते हैं, यूनिक की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अभी हमको ऐड करना है यूनिक की। अभी तक कोई भी कॉलम पे कोई भी की एडेड नहीं है, सो ये ब्लैंक दिख रहा है। So there is nothing we have added in this table. Okay, now I am creating a second table with name A2. In that I am again adding same column. Okay, but now I am just giving here the value as unique key. And after that I have given the comma. मतलब roll number ये पूरा definition में हमने बताया, roll number is the name of column, data type is int, size is 3, and I have added one constraint. Its name is unique key, which is added on roll number. And after that I am adding the second column, that is a name, its data type and size. So you can understand the change in table 1 and table 2. Now I am using a describe command for A2. So you can see the difference between first and second. So in first one, in key there is a blank, there is nothing. But if you go here, you will find out there is a UNI. UNI means it is a unique key which we have added on the roll number column. So I hope you understand कि अगर आप कोई भी टेबल पे यूनिक कंस्ट्रेंट देते हो, तो जब आप डिस्क्राइब कमांड डालोगे तो जिस भी फील्ड के आगे UNI लिख के आएगा तो आपको समझ जाएगा कि ये कॉलम जो है इसके ऊपर आपने यूनिक की ये कंस्ट्रेंट डाल के रखा हुआ है। ओके, अभी मैंने A1 जो है उस पे डाला नहीं है, यूनिक की A2 पे है। दोनों में हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि यूनिक की डालने के बाद क्या डिफरेंस होता है। सो वी विल इंसर्ट अ रो, इंसर्ट इनटू, पहले हम A1 में डालेंगे जिसमें मैंने यूनिक की नहीं डाला है, एंड देन वैल्यूज। रोल नंबर के लिए मैंने वैल्यू दी है 1। ओके, सी हियर वी हैव अ 2 कॉलम्स। सो 2 कॉलम्स है, इसके लिए हम ब्रैकेट में 2 वैल्यूज देने वाले हैं। फर्स्ट वैल्यू जाएगी रोल नंबर के लिए, सेकेंड वैल्यू जाएगी नेम के लिए। और इंटीजर के लिए वैल्यू सिंगल कोट में नहीं देते हैं, स्ट्रिंग या वैरक्यार के लिए जो भी डेटा है वो सिंगल कोट में दिया जाता है। सो वी हैव एडेड 1 रो। Okay, again I am adding a second row with the same roll number. By mistakenly I have given the same roll number here. Okay, now we'll see what happened. Okay, it have taken all the 2 rows with having the roll number same. So जब मैं बोल रही हूँ select star मतलब पूरा टेबल का डेटा हमको दिखा दो फ्रॉम A1, ये सब कमांड इंसर्ट अपडेट डिलीट हम थर्ड प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तब पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ समझने के लिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ। सो A1 जो टेबल है, A1 टेबल में हमने यूनिक कंस्ट्रेंट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं डाला है रोल नंबर के लिए। सो इट इज एक्सेप्टिंग द duplicate value for 2 different rows. Now we are inserting the same rows instead of A1 into A2, and we'll see what change is happening. So here I am just changing from A1 to A2, and again same roll number, only I have changed the name here.
Now you can see what when I am trying to add the same roll number. First row it have accepted with same roll number in A2. But when I am trying to add a second row with the same roll number in A2, it is giving me a error. And error is duplicate entry 1 for key roll number. यानी अभी आप रोल नंबर के लिए अगर आपने एक कोई वैल्यू ऑलरेडी डाली है टेबल में तो सेम वैल्यू आप रिपीट नहीं कर सकते हो. बट फॉर विच टेबल? फॉर A2 टेबल, क्योंकि हमने A2 टेबल जो है उसमें रोल नंबर के लिए यूनिक की ये कंस्ट्रेंट डाला हुआ है. बट फॉर टेबल A1 वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी कंस्ट्रेंट, सो इट इज एक्सेप्टिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज ऑल्सो. दिस इज अ यूज ऑफ यूनिक की. जब आपको लग रहा है किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू यूजर ने नहीं डालने चाहिए, ऑटोमेटिक एरर आना चाहिए, सो यू कैन गो विथ अ यूनिक की. ओके, नाउ अब मुझे लग रहा है कि A1 जो टेबल है इस पे मुझे यूनिक की ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है जो पहले नहीं था. ओके, लेकिन अभी ऑलरेडी उस टेबल में 2 रोज है जिसमें मेरे वैल्यूज है, तो अभी हम इस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते. जब आपको अप्लाई करना है तो आपको पहले वो दोनों रोज रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है. तो अभी हम पहले A2 जो टेबल है, A1 जो टेबल है उसके रोज को रिमूव करते हैं. सो डिलीट फ्रॉम A1. ओके, और इसके बाद जब मैं कर रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम A1, अब आप देखोगे A1 जो है वो एम्प्टी हो गया. यहाँ पे 2 जो रोज थे वी हैव जस्ट डिलीटेड दैट 2 रोज बाय जस्ट सिंपल डिलीट कमांड. ओके, अभी 2 रोज जो है टेबल से रिमूव हो गए. अब मैं इसके ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन ऐड कर सकती हूँ. देखो A1 ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है. अब आफ्टर टेबल क्रिएशन आई एम एडिंग द सेम यूनिक कंस्ट्रेंट. तो टेबल क्रिएशन के बाद कुछ भी नई चीज ऐड करनी है तो हमने कौन सी कमांड सीखी है? अल्टर टेबल कमांड. देखिए अल्टर टेबल से अगर आपको पहली डायग्राम याद होगी तो अल्टर टेबल से आप 2 चीजें कर सकते हो. अल्टर टेबल से आप ऐड कॉलम कर सकते हो, मॉडिफाई कॉलम, ड्रॉप कॉलम, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड अ कंस्ट्रेंट, ड्रॉप अ कंस्ट्रेंट एंड मॉडिफाई अ कंस्ट्रेंट. यानी अल्टर टेबल ये नया कॉलम ऐड करने के लिए भी यूज होता है और नया कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए भी यूज होता है. सो आई एम जस्ट यूजिंग हियर अल्टर टेबल A1 ऐड. अब हम कॉलम ऐड नहीं कर रहे, कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं. उसके लिए उसको बताना जरूरी है कि हम A1 ये जो टेबल है उसमें क्या ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग अ कंस्ट्रेंट. इस कंस्ट्रेंट को कुछ भी नाम देना जरूरी है जब आप आफ्टर टेबल क्रिएट करते हो उसको. एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन इट इज नॉट मैंडेटरी. हमने कोई नाम नहीं दिया था, सिर्फ यूनिक की लिखा था यानी टाइप बताया था. अभी U1 मीन्स आई हैव गिवन द नेम एंड आई एम गिविंग हियर अ टाइप दैट इज यूनिक की. U1 एक कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया जो यूनिक की है. ओके, और कौन से कॉलम पे हम ऐड कर रहे हैं? सो कॉलम नेम इज रोल नंबर. So now if I am using a describe A1, so you can see कि after that unique ये constraint वापस हमारे A1 टेबल पे ऐड हो गया है. ओके, मुझे लगता है ये समझ में आया रहेगा. फिर भी हम इसको वापस रिवाइज करते हैं. रिवाइज करने के लिए मैं दोनों टेबल को वापस ड्रॉप कर रही हूँ. यहाँ पे ड्रॉप करने के पहले कंस्ट्रेंट को कैसे रिमूव करना है वो भी मैं बताती हूँ. ओके, सो हियर वी हैव एडेड अ यूनिक कंस्ट्रेंट. नाउ आई डोंट वांट दैट कंस्ट्रेंट. मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं. ओके, मुझे ये कंस्ट्रेंट हटा देना है. ओके, सो यू कैन रिमूव दैट कंस्ट्रेंट जस्ट बाय गिविंग अ सिंपल कमांड अल्टर टेबल नेम ऑफ टेबल that is A1 and then simple drop index. यूनिक के लिए जो यूज किया जाता है वर्ड दैट इज अ इंडेक्स, और हमने जो नाम दिया हुआ है जब इसको क्रिएट किया दैट इज अ U1. सो वी विल जस्ट पुट हियर U1. ओके, और वापस अब अगर मैं डिस्क्राइब कमांड करूंगी तो यू कैन सी हियर like here it is an unique key, but after dropping the constraint by using drop command, okay, so here there is no unique constraint. Now we have dropped the constraint by giving the constraint name that is U1 जो हमने ये constraint बनाते वक्त यहाँ पे डाला था. okay, अब देखेंगे हम A2 टेबल के लिए. if I go above
and if you just check out, when I have created a A2 table, in that, in roll number, I have added a unique key, but I have not given any name like U1, U2, U3 when I have created this constraint. So when you want to drop a constraint where you haven't put in any name for that constraint, तो अभी आपके पास नाम नहीं है, तो अभी आप कैसे इसको remove करेंगे? So that we'll see. यहाँ पे हमारा U1 नाम था, इसके लिए हमने ड्रॉप किया. A2 में हमने कोई नाम नहीं दिया है. सो ऐसे टाइम अगर हमको ड्रॉप करना है, सो हाउ वी कैन ड्रॉप दिस? सो फॉर दैट यू हैव टू यूज alter table. Table name is A2. Then drop index. And now you can give a column name. जैसे हमने ये जो constraint बनाया है A2 के ऊपर, see here. A2 जो है, A2 पे जब हमने ये constraint बनाया, कौन से column पे बनाया हमने? roll number पे बनाया. तो जब आप आपने अगर नाम नहीं दिया है constraint को, तो आप column का नाम वहाँ पे दे सकते हो. Still it can add that, remove that constraint. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया roll number. And if I am now using a describe A2, so you can see कि यहाँ पे A2 से भी वो constraint remove हो गया है. So we can add a constraint 2 times at the time of table creation, after table creation. Then you can drop a constraint by giving constraint name or by giving the column name on which you have added that constraint, and you can check whether that constraint is added or not just by using a describe command. In describe command, and in the describe command, if it have given a UNI keyword under the key column, so you can find out that unique key constraint is added. So is it clear, or you want to revise this command once more, students? आपको लगता है तो हम इसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार, और फिर हम अगले इसके लिए जाएंगे. Have you understood this, students? Yes, ma'am. सबको समझ में आया है कैसे किया हमने ये? Yes, ma'am. Okay, so I will start with the next command. तो अभी हमारा जो next है, that means we have just seen the unique command. Unique command is used when you don't want a duplicate values. Now second we will go with a not null. Not null मतलब जब आपको लग रहा है कि कोई भी कॉलम में null ये वैल्यू, null मतलब क्या कि आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, ब्लैंक रखा है, तो आपको लग रहा है कि उस कॉलम के लिए कोई भी रो की वैल्यू ब्लैंक होनी ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आपने उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए. ओके, सो हाउ टू डू दैट? तो अभी हम सिंपल एक कमांड, एक टेबल बनाते हैं. ओके, पहले मैं बताती हूँ क्या होता है नॉट नल, सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो हमने एक टेबल बना लिया, क्रिएट टेबल A3. सेम टेबल है, सिर्फ नाम, टेबल के नाम बना रही हूँ, लेकिन जो उसके कॉलम से आई एम जस्ट पुटिंग द सेम column, so it will be easy for you to understand. Okay, I have not added still not null command. Okay, simple table बना लिया A3 जिसमें roll number name डाला है but not null नहीं किया. Okay, and now I am using here describe A3. Okay, so not null ये constraint आप कहाँ से check कर सकते हो? So ये जो यहाँ पे describe करने के बाद You can see here, यहाँ पे null करके आ रहा है, तो दोनों में null मतलब रोल नंबर के लिए null yes है, नेम के लिए null yes है, मतलब दोनों कॉलम की वैल्यू null हो सकती है. ओके, और हमको चाहिए कि null नहीं रहना चाहिए. बाय डिफॉल्ट null अलाउडेड रहता है. सो क्या होता है, अभी हम इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं और आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है. सपोज आई हैव इंसर्टेड अ वैल्यू, इंसर्ट इनटू A3 वैल्यूज. ओके, वैल्यूज के बजाय मैं बता रही हूँ कि मैं कौन से कॉलम के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर, मैं सिर्फ रोल नंबर के लिए वैल्यू दे रही हूँ. तो मैंने बताया इंसर्ट इनटू A3, बट आई एम जस्ट गिविंग अ वैल्यू फॉर रोल नंबर, एंड हियर आई एम गिविंग वैल्यूज एज 1. ओके, दैट्स इट. सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन मोर रो, सो आई एम गिविंग हियर वैल्यू एज अ 2. रोल नंबर के लिए 2 वैल्यू दी, मैंने नेम के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, एंड इट इज एक्सेप्टिंग दैट रो, मतलब नेम ये नल हो सकता है. ओके, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम A3। सो आप देखोगे कि रोल नंबर के लिए वैल्यू तो आ गई, बट फॉर नेम as I have not given any value, by default it have given it as a null. Okay, now I am putting one more row where I am adding a value to name, but just making a null value to the roll number. So here I am just adding here, instead of roll number I am just giving here that I am giving the value for name column, and here I am giving a value as some name. Okay, and now I am using a select star from table. You can see third row is added, where as I have not given any value for roll number, it have putted the null, and the name of the name is added in the name column. So in this table I can make roll number as a null, name as null also, but sometimes you want that a particular column should not be null at all. अगर आप नल वैल्यू दे रहे हो तो उसने वहां पे एरर देना चाहिए। ओके, ऐसा आपको कंस्ट्रेंट डालना है, तो अभी आप कैसे करोगे? सो वी विल सी हियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक टेबल और एक बना लिया। ओके, क्रिएट टेबल A4, then roll number, int, then name, varchar, and I have just added here a constant which is called as the not null. Now I am describing A4. So now you can see the change. यहाँ पे roll number के लिए मैं null value दे सकती हूँ, but name के लिए null value is not allowed. तो जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल बनाते वक्त नेम के लिए नॉट नल ये कंस्ट्रेंट ऐड किया, तो डिस्क्राइब टेबल में भी नल ये कॉलम के अंदर नेम के लिए नो आ गया। इफ आई नाउ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द नल वैल्यू इन A4, जस्ट सी व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पे हमने डाल दिया इंसर्ट इनटू A4। ओके, और अभी मैं बोली कि मैं सिर्फ रोल नंबर के लिए वैल्यू दे रही हूँ लेकिन नेम के लिए नहीं, मतलब वो वैल्यू नल हो जाएगी। तो देखते वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। सो हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, सो यू कैन सी हियर व्हेन आई एम ट्राइंग टू गिविंग द वैल्यू ओनली फॉर रोल नंबर बट नॉट फॉर नेम, सो इट अंडरस्टैंड द नेम इज नाउ गोइंग टू बी नल, और ये नल तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट डाला हुआ है, तो अब ये क्या कर रहा है वहां पे, इट इज गिविंग द एरर फील्ड नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आप इसको नल नहीं रख सकते हो, आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो इफ आई एम ट्राइंग टू पुट द वैल्यू फॉर name and I want to make a roll number as a blank, तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया कुछ तो नाम डाल दिया यहाँ पे। ओके, अब ये एरर देगा या एक्सेप्ट करेगा? स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको? एक्सेप्ट करेंगे। राइट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रोल नंबर के लिए हमने नल ये कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, तो रोल नंबर नल हो सकता है लेकिन नेम ये नल नहीं हो सकता है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्लाई अ नॉट नल। लेकिन हमने नॉट नल ये कहाँ पे अप्लाई किया? एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। अब मुझे लग रहा है कि आफ्टर टेबल क्रिएशन हमने एक टेबल बना लिया है और अब मुझे ऐड करना है उसको, नॉट नल ये कंस्ट्रेंट ऐड करना है। सो हाउ टू डू दैट? ओके, तो अभी हमारे पास ऑलरेडी एक A3 नाम का टेबल है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, लेकिन इसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज डाले, तो पहले मुझे वो वैल्यूज निकाल देने पड़ेंगे, या फिर चलो हम कोई नया टेबल ही बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट। सो यहाँ पे हमने बना लिया क्रिएट टेबल A5 रोल नंबर इंट। इंट के लिए अगर आप डेटा टाइप नहीं भी देते हो तो भी चलता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसको याद रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं नॉट नल ये कंस्ट्रेंट देना भूल गई, रोल नंबर को भी नहीं दिया और नेम को भी नहीं दिया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे नॉट नल ये कंस्ट्रेंट ऐड करना है। आई वांट टू ऐड अ नॉट नल कंस्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन, सो वी कैन ऐड ऑन एनीवेयर, ऑन रोल नंबर आल्सो और
नेम ऑल्सो। तो सपोज अगर हमको नेम के लिए ऐड करना है तो हम यूज करेंगे हियर अल्टर टेबल, टेबल नेम इज A5। अब ऐड के बजाय सी यूनिक, प्राइमरी एंड फॉरेन, ये कीज है जिसको आपको ऐड करना पड़ता है, लेकिन डिफॉल्ट और नॉट नल ये जो कंस्ट्रेंट है ये आपको ऐड नहीं करना पड़ता है। यू हैव टू यूज अ मॉडिफाई कीवर्ड विथ अल्टर टेबल जब आपको ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। सो यू हैव टू यूज हियर मॉडिफाई, ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई। किस में मॉडिफाई करना है? हमने बोला कि नेम ये कॉलम में मुझे मॉडिफाई करना है, इसमें अभी आपको पूरा देना पड़ता है। जैसे हमने डाल दिया varchar और यहाँ पे आगे खाली लिख दो नॉट नल, दैट्स इट। ओके, तो अब ये क्या हो गया, हमने वापस नेम ये कॉलम दिया, वापस उसका डेटा टाइप और साइज देना पड़ता है और आगे हमने लिख दिया नॉट नल, दैट्स इट। तो आफ्टर टेबल क्रिएशन you can add a not null constraint by using modify name of column, its data type in bracket size and with not null। अगर अभी आपको लग रहा है कि रोल नंबर के लिए भी मुझे अप्लाई करना है, so same here we can use here a number, int and not null, so it is added। so if I am using here describe A5, तो यहाँ पे नल दोनों कॉलम के लिए नल, येस के बजाय क्या आया है, नो, मीन्स इट कैनॉट बी नल फॉर रोल नंबर एज वेल एज नेम। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव दिस नॉट नल कंस्ट्रेंट, सो व्हाट यू विल डू, सो नॉट नल ये कंस्ट्रेंट जैसे आपने अप्लाई किया वैसे ही रिमूव करना बहुत इजी है। तो जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सॉरी जो अप्लाई हमने किया है रोल नंबर के लिए, अगर हमको उसको रिमूव करना है, ओके, सो वी विल यूज द सेम वी विल यूज अ मॉडिफाई कीवर्ड टू रिमूव दैट थिंग। ओके, कैसे करना है अभी बताती हूँ, अभी हम रोल नंबर के लिए कर रहे हैं। तो सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे आई हैव एडेड द सेम कमांड और यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉट नल निकाल दिया। यहाँ से मैंने बोला मॉडिफाई रोल नंबर इंट, मॉडिफाई हो गया, मतलब नॉट नल जो ऐड किया था वो इसमें से मॉडिफाई से निकल जाएगा। एंड इफ आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट, नाउ यू कैन सी रोल नंबर के लिए यहाँ पे जैसे दोनों नो थे, यहाँ पे रोल नंबर के लिए क्या आ गया है, यस, नाउ नॉट नल ये कंस्ट्रेंट निकल गया। ऐसे मुझे नेम के लिए निकालना रहेगा तो सो सेम आई हैव टू यूज द सेम, यहाँ पे जो कमांड डाली थी आई विल पुट द सेम कमांड बट आई विल जस्ट नॉट एड अ नॉट नल। नॉट नल मत लिखो, ऑटोमेटिक नॉट नल ये कंस्ट्रेंट वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, सो हियर इफ आई एम जस्ट repeating that command, I am just removing the not null words from that command and now I am describing. Now you can see for roll number and name, for both the column the not null constraint is removed. So this is about the second constraint. So I hope you have understood students, समझ में आया है या आपको इसमें से कुछ रिपीट करवाना है? ओके, थैंक यू। अभी मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट हेलो मैडम 10 मिनट रहे तो सेम लिंक से ज्वाइन करने को बोलना स्टूडेंट को। ओके, ठीक है, नहीं ठीक है ना, 3 बजे से भी संघवी सर का एक्चुअली एक हमारा अपना मीटिंग है ना, तो ठीक है, हो जाएगा ना अपना। हाँ ठीक है, प्राइमरी की तक लेते हैं, आगे का कल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलेगा। ओके, सो हियर वी विल गो विथ अ प्राइमरी की। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जितने टेबल हमने बनाए थे पहले उसको रिमूव कर देती हूँ। तो ड्रॉप टेबल A1, यानी वही टेबल के नाम हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारे टेबल जितने भी हमने बनाए थे सब रिमूव हो गए। नाउ विल गोइंग विथ अ प्राइमरी की। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की एंड नॉट नल की। जो दो कंस्ट्रेंट हमने देखे, यूनिक एंड नॉट नल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ प्राइमरी की। मतलब अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड नहीं रहेगी और नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं रहेगी। यूनिक में डुप्लीकेशन अवॉइड होता है बट वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। नॉट नल में नल वैल्यूज नहीं लेता है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज लेता है। इन दोनों का वो कंबाइन करता है, मीन्स योर
column to which you have applied the primary key constraint, now it cannot be having a duplicate value and it cannot be null. तो दोनों का combination हो जाएगा. तो अब इसको टेबल क्रिएशन के वक्त कैसे ऐड करना है, आफ्टर टेबल क्रिएशन कैसे ऐड करना है, both the things we will see. So here we have used create table and given the name as A1. Then in that again roll number, int, size, simple you can add here primary key, that's it. आपको लग रहा है कुछ नाम देना है P1 primary key etc etc, that also you can add. आपको लग रहा है कुछ नाम नहीं देना है, टेबल क्रिएशन के वक्त नाम देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आफ्टर टेबल क्रिएशन, if you are adding a column, adding a constraint, then you have to give the name. Okay, so here name, then next is name varchar 30. And now if I am using a describe and A1, so you can see here key के अंदर यहाँ पे जो है ये कौन सा की ऐड हो गया है, यहाँ पे PRI, that is प्राइमरी की, ये कंस्ट्रेंट हमारा ऐड हो गया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, एक 3 o'clock को हमारा ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल था, सो सॉरी, अभी हमारा एक्चुअली प्रैक्टिकल का लिंक हमारा लेट हम लोगों ने ज्वाइन किया.